Hey guys, this is Aman Mittal welcoming you all to Cracked Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today we shall be cracking each and every essential information with respect to the Atmanirbhar Bharat Abhiyan 2.0, which lays emphasis upon the migrant laborers, street vendors and small traders. So respecting the time, let's begin this video. Government of India came out with the fiscal stimulus package 1.0 under the name प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें 1% ऑफ द जीडीपी के इक्वलेंट वैल्यू को पंप इन किया गया था इनटू द इंडियन इकोनॉमी टू फाइट विद द कोरोना वायरस एंड द लॉकडाउन इफेक्ट्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी. बट देन द एक्सपर्ट्स केम आउट विद द सजेशन कि 1% इज टू लेस एंड इट शुड बी इंक्रीज टू एटलीस्ट 5% कंसिडरिंग द साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया announced the Atmanirbhar Bharat Abhiyan and expressed his intention to pump in near about 20 lakh crore rupees, equivalent to the 10% of the Indian GDP, into the Indian economy. And since that announcement, Finance Minister of India for the second time has come out with the final details of this package. And in this second tranche of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the government has emphasized upon the migrant laborers, small traders and street vendors. So basically, second tranche of the ABA tries to ameliorate the hardships of this segment of the people. Migrant workers are in the need of affordable and convenient rental housing, and also they are looking for some employment opportunities because most of them live in hand-to-mouth conditions. And also farmers are in the need of timely and adequate credit support. So let us see in detail what are all the announcements made by the government of India in its second tranche of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. So government has decided to supply food grains फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द माइग्रेंट्स फॉर द 2 months. अब इसकी फाइनल डिटेल्स हम देख लेते हैं. तो एडिशनल फूड ग्रेन्स जो है वो सारे स्टेट्स और यूटीज को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 5 किलो पर माइग्रेंट वर्कर्स को सीरियल्स दिए जाएंगे और 1 किलो चना दिया जाएगा पर फैमिली फॉर द नेक्स्ट कमिंग 2 months. और इसमें वो माइग्रेंट्स एलिजिबल हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते हैं और जिनके पास राशन कार्ड्स नहीं है. तो उन सारे माइग्रेंट्स को इस स्कीम के थ्रू फ्री फूड ग्रेन सप्लाई किया जाएगा. It is the duty of states and UTs to put up a mechanism for the targeted distribution of such a kind. So the responsibility is of the state and the union territories to identify such migrants who neither come under the ambit of the National Food Security Act nor they hold a ration card. So the entire amount allocated by the center for this supply of the food grains is about 3500 crore rupees. Then the government has also re-energized One Nation One Ration Card scheme. One Nation One Ration Card scheme is basically the portability of the ration cards, wherein a migrant worker possessing a ration card can get access to the food grains through any fair price shops or the FPS across the India, irrespective of the location mentioned in his ration card. तो अभी तक बेसिकली ऐसा होता था कि जो भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर एफपीएस के साथ टाई अप होता था और वो फूड ग्रेन्स सिर्फ उसी एफपीएस के थ्रू ले सकते थे. तो जब वर्कर्स किसी एक स्टेट से या किसी एक प्लेस से किसी दूसरी प्लेस पे जाते थे तो वो नई जगह पे जाके फूड ग्रेन्स एक्सेस नहीं कर पाते थे बिकॉज राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी नहीं थी. तो इसके कारण माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी इन एक्सेसिंग द फूड ग्रेन्स. So government has set 2 targets, that is 83% of the PDS population will be covered by August to 2020 and 100% of the national portability will be achieved by March 2021. And if we talk of the present situation, then near about 90% FPS shops have completed end-to-end computerization and EPOS mechanism, and also 90% of the Aadhaar cards have been seeded with the ration cards. But there is a small problem with the announcement made here with respect to the supply of the food grains. Government could have simply extended the ambit of the PDS because there are many out there who are not migrant workers but are not getting the food grains. So government of India should have allotted some amount for that kind of people as well. And with respect to the One Nation One Ration Card, there are states who do not want to be part of the One Nation One Ration Card, like Tamil Nadu. उसका अपना यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम है जहां पे सबको खाना मिलता है. तो इस टाइप के जब स्कीम्स ऑलरेडी किसी स्टेट में चल रही है तो वो रजिस्ट कर रहे हैं वन नेशन वन राशन कार्ड में आने से. एंड देन देयर हैव बीन कंसर्न्स विद रिगार्ड्स टू दी आधार कार्ड सीडिंग विद दी राशन कार्ड्स, जिसको हम जैम ट्रिनिटी भी बोलते हैं, बिकॉज उसमें काफी ज्यादा ग्लिचेस आ रहे हैं वेर इन इट हैज बीन ऑब्जर्व कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो लेबर्स के विद टाइम चेंज हो जाते हैं. तो आधार कार्ड जो बायोमेट्रिक वैलिडेशन मांगता है उसमें उस टाइप के जो वर्कर्स हैं वो बेसिकली एक्सेस नहीं कर पाते हैं. तो जैम ट्रिनिटी के रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने पहले बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड ऑल्सो देयर इज नीड टू नज सच स्टेट्स लाइक तमिलनाडु टू बी पार्ट ऑफ द वन नेशन वन राशन कार्ड.
The next announcement is with respect to the rental housing, wherein the government has said that affordable rental housing complexes will be provided to migrant workers and urban poor to provide ease of living at affordable rent. तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट फंडेड हाउसेस को कन्वर्ट करेगी एंड ऑल्सो इट विल ट्राई टू इंसेंटिवाइज द प्राइवेट प्लेयर्स. तो ये पीपीपी मोड के थ्रू होगा जिसमें कन्वर्जन होगा ऑलरेडी बिल्ट हाउसेस का. जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री आवास योजना में काफी ज्यादा रेसिडेंशियल यूनिट्स ऐसी हैं जो अभी ऑक्यूपाइड नहीं है, तो वो सारे यूनिट्स को रेंटल हाउसिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है. सिमिलरली काफी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ जहां पे स्पेस अवेलेबल है. सो गवर्नमेंट विल ट्राई टू इंसेंटिवाइज such enterprises to convert their spaces into affordable rental housing. So this step in longer run will definitely help migrants access the affordable housing with basic facilities and quality life. But immediate effect of the rental housing on the migrants and the urban poor is hard to imagine. Now moving on to the next set of announcements made under the second tranche of the government, an interest subvention of 2% has been provided to the Shishu Mudra loanees. Mudra is basically micro unit development and refinance agency जो कि wholly owned subsidiary है सिडबी की, that is Small Industrial Development Bank of India. तो मुद्रा का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है माइक्रो यूनिट्स को, एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट दैट द मुद्रा प्रोवाइड्स हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप ऑफ लोन्स, दैट इज शिशु, किशोर एंड तरुण. शिशु में लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं अप टू 50,000 रुपीज. किशोर में लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रॉम 50,000 टू 5 लाख एंड तरुण में लोन प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रॉम 5 टू 10 लाख. तो ये 3 कैटेगरीज के लोन है जो मुद्रा प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे बात हो रही है शिशु लोन की, दैट इज अप टू 50,000 रुपीज. तो जो भी स्मॉल ट्रेडर्स या बिजनेसमैन है जिन्होंने लोन लेके रखा हुआ है 50,000 रुपीज का फ्रॉम द मुद्रा, दे विल गेट द 2% इंटरेस्ट सबवेंशन. इंटरेस्ट सबवेंशन का सिंपल सा मतलब यह है कि उन्हें 2% की सब्सिडी मिल जाएगी. एंड द गवर्नमेंट फॉर दिस स्कीम हैज एलोकेटेड नियर अबाउट 1500 करोड़ रुपीज. द नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रीट वेंडर्स, जहां पे 5,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं. तो स्ट्रीट वेंडर्स को अप टू 10,000 का लोन मिलेगा यूजिंग द बैंक क्रेडिट फैसिलिटी, और इसमें अर्बन और रूरल दोनों स्ट्रीट वेंडर्स कवर होंगे. और इस स्कीम से गवर्नमेंट का ये एक्सपेक्टेशन है कि ये नियर अबाउट 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बेनिफिट करेगा. बट द थिंग इज दैट स्ट्रीट वेंडर्स आर हार्डली इनटू द एम्बिट ऑफ द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, सो बैंक्स कैन फाइंड इट हार्ड टू गिव दिस अमाउंट. नेक्स्ट द गवर्नमेंट हैज टारगेटेड द मिडिल इनकम ग्रुप, दैट इज द ग्रुप व्हिच हैज एनुअल इनकम बिटवीन 6 टू 18 lakhs. एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम ऑलरेडी चली आ रही थी फॉर द हाउसिंग सेक्टर, उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है टिल मार्च 2021. तो इससे बेसिकली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हाउसिंग सेक्टर को बेनिफिट आएगा, बिकॉज मिडिल इनकम ग्रुप जो है उनको क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के थ्रू लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद सम सॉर्ट ऑफ सब्सिडी ऑन द इंटरेस्ट, ताकि वो नया घर खरीद सकें. एंड वंस द रियल एस्टेट सेक्टर पिक्स अप, देयर वुड बी अ काइंड ऑफ trickle down effect which will again be good for the steel industry, cement industry, transport industry and for rest of the construction materials which are manufactured by different industries. So यहाँ पे basically एक trickle down effect expected है by providing this credit linked subsidy scheme to the middle income group. But the thing to be noted out here is that the real estate sector is not down because of the lockdown or because of the coronavirus. It is down since the time of the demonetization. So there are many issues with the real estate sector which are resisting the investors to invest in further. Moving on further to the next set of announcements made out here, the government is planning to create employment using the CAMPA funds. So CAMPA is basically compensatory afforestation management and planning authority. announcement को जानने से पहले हम CAMPA को जान लेते हैं, तो हमारे लिए announcement समझना थोड़ा सा easy हो जाएगा. तो 2016 में बेसिकली एक एक्ट आया था, that is the Compensatory Afforestation Fund Act of 2016. It basically established two things. The first is Compensatory Afforestation Fund, which was established under the Public Accounts of India, and second, Compensatory Afforestation Management and Planning Authority to manage the CAF, that is the Compensatory Afforestation Fund. So to manage this fund, this authority was created. तो basically इंडिया में जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं जिसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक डैम बनना है तो ऑब्वियस है कुछ पार्ट होगा फॉरेस्ट का जिसको क्लियर करके वहां पे डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा. तो वो जो फॉरेस्ट की क्लियरेंस है उसके अगेंस्ट में कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है उस कंपनी को विच इज डेवलपिंग दैट एरिया, एंड दैट अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन गोज इनटू द CAF.
जो भी डिफॉरेस्टेशन करेंगे उनको एक कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो फंड जो है वो यहाँ पे आके कलेक्ट होगा, एंड देन द गवर्नमेंट विल यूज दीज फंड्स फॉर द अफॉरेस्टेशन, ताकि जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जो ग्रीन कवर का लॉस हुआ है, उसको रिप्लेस किया जाए और उसको कॉम्पनसेट किया जाए एल्सवेयर। सीएएफ जो है ये सेंटर पे भी कॉन्स्टिट्यूटेड है, दैट इज इन दी पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये स्टेट्स में भी कॉन्स्टिट्यूटेड है, दैट इज अंडर दी पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट्स। और जो भी फॉरेस्ट क्लियरेंस के थ्रू कॉम्पनसेशन कलेक्ट होता है उसमें से 10% जो है वो सेंट्रल सीएएफ में जाता है एंड 90% गोज टू दी स्टेट सीएएफ। So to manage the funds of the center CAF, there is central CAMPA, and to manage the funds of the state CAF, there is state CAMPA. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बोला है कि कैंपा फंड्स को यूज करके वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे बाय गिविंग बूस्ट टू दी एफॉरेस्टेशन एंड दी प्लांटेशन वर्क्स, और इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल एरियाज एंड ऑल्सो फॉर दी ट्राइबल्स, दैट इज आदिवासीज। तो ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फंड है, उसमें से गवर्नमेंट पैसा यूज करके उस फंड का जो ऑब्जेक्टिव है वही करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की यहाँ पे अनाउंसमेंट में बात कर रही है। दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी, जिसमें 30,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं to the rural cooperative banks and the regional rural banks so that they can be used as a working capital for farmers. तो जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो ये फंड को लेंड आउट कर सकते हैं टू द फार्मर्स फॉर देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट नियर अबाउट 3 करोड़ फार्मर्स, मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल. And the last announcement in the second tranche made by the government of India is to enroll 2.5 crore farmers into the Kisan Credit Card scheme and provide them a sort of concessional credit. And the government for this work has allotted near about 2 lakh crore rupees. So these were all the final details made in the announcement, that is second tranche of the government of India. Now let us form a final opinion on the entire announcement. So the first thing about the second tranche is that most of the announcements were वो liquidity measures हैं जो कि RBI टैकल करेगा। जो गवर्नमेंट ने अपने पास से पैसा दिया है पूरे अनाउंसमेंट में वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए है। रेस्ट आर ऑल क्रेडिट बेस्ड मेजर्स एंड मियर एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम्स। जैसे कि हमने देखा कैंपा फंड का, कैंपा फंड ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश फंड है अंडर द एक्ट ऑफ 2016 विच ऑलरेडी हैज अनयूटिलाइज्ड फंड्स, और कैंपा का ऑब्जेक्टिव ही है अफॉरेस्टेशन करना। तो गवर्नमेंट इज मियरली पुशिंग दैट ऑब्जेक्टिव एंड इज ट्राइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू दैट and trying to make it a part of the announcement under the आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इस टाइप के एक और मेजर हमने देखा था, दैट इज द क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। वो ऑलरेडी रनिंग स्कीम है, उसको सिर्फ एक्सटेंड किया है। बाय पुशिंग द लिक्विडिटी इनटू द मार्केट, पीपल आर नॉट रेडी टू टेक द लोन्स, सो यू नीड टू पुट मनी इनटू द हैंड्स ऑफ द पीपल। दैट कुड हैव बीन डन थ्रू द एमजी नरेगा और थ्रू द डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, बिकॉज लिक्विडिटी मेजर्स अभी काम नहीं करेंगे जस्ट फॉर द रीजन दैट दिस स्लो डाउन इज डिमांड ड्रिवन। तो यहाँ पे कंजप्शन को बूस्ट करना इंपॉर्टेंट है, और कंजप्शन इजीली बूस्ट हो सकता है थ्रू द एमजी नरेगा, especially in the rural areas, and through direct cash transfers. So what the experts have called out second tranche is too little and too late. That was all in the Crack Nuts today. Hope we have cracked it right. Please subscribe to our channel. We expect you to post your comments, suggestions, queries in the comment section below. Keep learning guys. Thank you.